My last word is to the investors. This is the time to come to Pakistan when it is just going on the upswing. This is the time to invest in the country. Don't miss the boat. We feel that this is the time that Pakistan will take off. معیشت نے بلندی کا سفر شروع کر دیا. پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھنے لگا. سرمایہ کار سنہری موقع ضائع نہ کریں. وزیر اعظم کا دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب. ماضی کی معاشی پالیسیز میں تبدیلی اور اصلاحات کے ایجنڈے کا آغاز ہو گیا. وقتی مشکلات جلد ختم ہو جائیں گی. عمران خان پر امید. We have a reform agenda. Reforms are painful. When you make reforms, people suffer. They go through a difficult time. We are trying to improve economic policies, trying to cut down our fiscal deficit. وزیر اعظم عمران خان اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات. پاکستان میں معاشی اصلاحات اور پالیسی امور پر مل کر کام کرنے پر اتفاق. مکمل ہم آہنگی پائی گئی. وزیر اعظم کا ٹویٹ. ملاقات مثبت رہی. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پاکستان کو امداد دینے کے لیے تیار ہے. کرسٹین لیگارڈ کا بیان جاری. عمران خان کا UAE کا دورہ. ہم منصب شیخ محمد بن راشد ال مختوم، ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید اور لبنانی وزیر اعظم سعد الحریری سے ملاقاتیں. دوستانہ تعلقات اور باہمی تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال. بری گورننس کی وجہ سے بہت سے مسائل نے جنم لیا. وزیر اعظم اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں. IMF شرائط کا کم سے کم بوجھ عوام پر ڈالنا چاہتے ہیں. شاہ محمود قریشی کی میڈیا ٹاک. پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم چل کے IMF کے پاس جا رہا ہے. اس سسٹم کو نقصان پہنچے گا. حالات مزید بگڑیں گے. پارلیمنٹ کے باہر جو ہے احتجاج نہیں کرنا چاہتے. ہم کو کنٹینروں پہ نہیں چڑھنا چاہتے. پہلی بار کوئی وزیر اعظم خود چل کر IMF کے پاس گیا. حکومت نواز شریف کی بیماری کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تو حالات مزید بگڑیں گے. نظام منجمد کر سکتے ہیں لیکن کنٹینر پر نہیں چڑھنا چاہتے. خواجہ آصف کی وارننگ. پہلی حکومت ہے جس نے IMF شرائط پر پیشگی عمل کیا. اب ملاقات کا ڈرامہ کیوں؟ قوم کے سامنے سچے وعدے کرنے والے تمام کام خفیہ کر رہے ہیں. مریم اورنگزیب کا رد عمل. ہمارے درمیان کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں. ہمارا جو اتحاد قائم ہے وہ مضبوط ہے، وہ رہے گا. ہم نے عہد کیا ہوا ہے تحریک انصاف کا. عہد رہے گا اور ساتھ ہم چلیں گے. وقت کی ضرورت ہے. وعدے پورے کرنے کی یقین دہانی کے بعد روٹھا اتحادی مان گیا. نئی ملحق کی چودھری شجاعت اور مونس الہی سے ملاقات. اتحاد مزید مضبوط ہوگا. وزیر اعظم کے مشیر کو یقین. افواہوں پر کان نہ دھریں. کسی نے سازش کی تو ساتھ نہیں دیں گے. چودھری شجاعت کی گفتگو. کل لڑائی، آج بھائی بھائی. وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں. IG اور چیف سیکرٹری کو ہٹا کر اختیارات کا استعمال کیا. قبائلی اضلاع کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک پیج پر ہیں. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کی وضاحت آ گئی. نے مزید 5 کشمیریوں کو شہید کر دیا. 69 شہریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال. آنسو گیس کی چیلنج. بھارت مقبوضہ وادی میں مظالم بند کرے. کشمیریوں کا واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ. انسانی حقوق کی پامالی کا نوٹس لینے کا مطالبہ. قابض فوج کے خلاف نعرے. پاک بحریہ کی امن مشق 2019 کا تیسرا روز. چیف آف نیول سٹاف کا شریک ممالک کے بحری جہازوں کا دورہ. کمانڈنگ افسران اور عملے سے ملاقاتیں. پاکستان اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں 17 فروری سے مذاکرات کا آغاز. سیکرٹری خزانہ عارف خان پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے. منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا.
साल के दौरान सरकारी इदारों के कर्जों में 532 अरब का इजाफा, मजमूई हजम 1129 अरब तक पहुंच गया। तफसीलात दुनिया न्यूज पर। हुकूमत पंजाब ने आइंदा माली साल के लिए बजट की तैयारी शुरू कर दी। महकमों से तजावीज़ तलब, अरकान असेंबली वाटर सप्लाई, सीवरेज, तालीम और सेहत के शोबों में स्कीमें जमा कराएंगे। लाहौर में 32 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का इंकशाफ, महकमा एंटी करप्शन इन एक्शन, LDA मेट्रोपॉलिटन विंग के अफसरान 15 फरवरी को तलब। महकमा सेहत पंजाब का एक और मेगा स्कैंडल बेनकाब, माँ बच्चे की सेहत और ग़िज़ाइयत के मंसूबे में 110 करोड़ की मुबैना खोट-बोट, अद्वियात की खरीदारी और दीगर ठेके महंगे दामों देने का इंकशाफ। फैसलाबाद में कातिल डोर ने एक और जिंदगी छीन ली। फैक्ट्री से घर वापस जाने वाला नौजवान जाँ बहक। लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में भी खूनी खेल। इंतजामिया पतंगबाजी रोकने में नाकाम, कई गिरफ्तारियों का दावा। लाहौर के करीब फिरोजवाला से 3 अफराद की लाशें बरामद, तीनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। शनाख्त होने वाले जहांगीर और खलील डकैती की कई मुकदमात में मतलूब निकले। मुल्तान के नेक्टर अस्पताल से एक और जाली डॉक्टर पकड़ा गया। जावेद इकबाल अपने आप को स्पेशलिस्ट सर्जन बताता, टेस्ट के नाम पर मरीजों से पैसे भी बटोरता रहा। इमरजेंसी से धर लिया गया, मुकदमा दर्ज। लियाकतपुर में मस्जिद में चोरी करता हुआ मुलजिम अवाम के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने पहले खूब दुर्गत बनाई, फिर गधे पर बिठाकर इलाके की सैर करवाई। हालिया बारिशें और बर्फबारी, महकमे शाहरात आज़ाद कश्मीर के दावों की कलई खुल गई। वादी अली पर ग्रीस का ज़मीनी राब्ता 2 माह से मुनक़ता, शाहराहें बंद होने से अशाए खुरोनोश की भी कमी, शहरी मुश्किलात से दो चार। अशरफ गनी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में टांग ना अड़ाएं, अपने मसाइल पर तवज्जो दें। अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस का मशवरा, हम एक उंगली दूसरों पर उठाएंगे तो 4 हमारी तरफ भी उठेंगी। रुकन अफगान पार्लियामेंट फौजिया कोफी की मीडिया से गुफ्तगू। वसीम खान ने PCB के मैनेजिंग डायरेक्टर का ओहदा संभाल लिया। इंतखाब के लिए शफाफ तरीक़ाकार अपनाया गया। क्रिकेट बोर्ड को प्रोफेशनल इदारा बनाने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन एहसान मानी की मीडिया से गुफ्तगू। शर्जील खान को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की इजाजत न देने का फैसला। छुट्टी के रोज खूब मौज मस्ती, कराची वालों के दिन भर साहिल समंदर पर डेरे। मंचलों की लहरों से छेड़खानी, कहीं घुड़सवारी तो कहीं ऊंट पर सैर। लोगों की बड़ी तादाद हसीन मौसम से लुत्फानंदोज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं जवेरिया जैद और मैं हूं उम्मे रुबाब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ करेंगे कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत ने बुलंदी का सफर शुरू कर दिया है। तरक्की और खुशहाली का आगाज हो चुका है। सरमायाकार हमारे मुल्क में सरमायाकारी का सुनहरी मौका जाया न करें। जी हां, दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत ने माजी की मौशी पॉलिसीज की तब्दीली और इस्लाहात के एजेंडे का आगाज कर दिया। इस्लाहात से कदरे मुश्किल होती है, लेकिन इस डर से इस अमल में ताखीर के नताइज भयानक निकलते हैं। उनका मजीद कहना था कि हम कारोबार में मुश्किलात कम करने की पॉलिसी पर तेजी से अमल कर रहे हैं। The most important thing is that we must in Pakistan start a reform program. Reforms are painful, but it is essential if we have to get out of our current problems. In the last election, we got 17 million votes, which is the highest ever won by a party. And so now
We have a reform agenda. Repeat, reforms are painful. When you make reforms, people suffer. They go through a difficult times. It's like a surgery. When you conduct surgery, for a while, the patient suffers, but then he improves. The worst thing that can happen to a society is that you keep postponing reforms because of the fear that you will have opposition, the vested interest will stand up, and you don't do reform. So we've started on an ambitious reform program. We are trying to improve economic policies, trying to cut down our fiscal deficit. When we got into power, we had massive fiscal deficit and current account deficit. So we are doing that. Pakistan now has a chance. Already we are seeing optimism. Investors are coming into our country. We feel that this is the time that Pakistan will take off. We have started working on ease of doing business, making it easier for people to do business, easier for the investors, changing our tax laws. We are conducting a series of reforms. We're seeing the signs of the country improving. First time in Pakistan, we have 70 countries which can come in and get visa at the airport. So now we are reversing the whole thing. We are now asking businesses that, look, we will help you in making money, because the more money they make, the more investment will come. But the only thing is, the money, as we create wealth, that wealth will be used to lift people out of poverty. So we want an equitable growth. We don't want the rich to get richer and the poor to get poorer. My last word is to the investors. This is the time to come to Pakistan when it is just going on the upswing. This is the time to invest in the country. And don't miss the boat. Thank you. और अभी आपको बताएं कि एमडी आईएमएफ से मुलाकात के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और कहा है कि इस मुलाकात में मुकम्मल हम आहंगी पाई गई है। वजीर आज़म ने कहा कि मुल्क को पायदार तरक्की पर डालने के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस्लाहाती अमल में कम आमदन वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वजीर आज़म ने ये ट्वीट किया। वजीर आज़म इमरान खान का एमडी आईएमएफ से मुलाकात के बाद ये ट्वीट सामने आया है और वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है इस ट्वीट में कि इस मुलाकात में मुकम्मल हम आहंगी पाई गई है। वजीर आज़म इमरान खान यूए के एक रोज़ा दौरे पर हैं। वहाँ पर आईएमएफ से बातचीत होना थी। असद उमर भी वहीं पर मौजूद थे और उसके बाद खबर ये सामने आई कि मामलात तय पा गए हैं। उससे पहले यही हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि अवाम पर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला जाएगा। और वज़ीर आज़म ने दौरे यूए के दौरान शेख राशिद बिन मोहम्मद अल मक्तूम, शेख मोहम्मद बिन जैद, साद अल हरैरी और एमडी आईएमएफ से मुलाकातें की हैं। क्रिस्टियन लेगार्ड ने कहा मुआशी इस्लाहात पर इत्तेफाक हो गया है, पाकिस्तान को इमदाद देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ताउन को सराहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात, 7वें आलमी हुकूमती इजलास के मेज़बान यूएई के वज़ीर आज़म शेख राशिद बिन मोहम्मद अल मक्तूम, एमडी आईएमएफ समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म इमरान खान और क्रिस्टीन लेगार्ड की मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुआशी इस्लाहात पर इत्तेफाक। वर्ल्ड समिट की साइड लाइन पर होने वाली मुलाकात में मुआशी सूरत हाल और आईएमएफ प्रोग्राम पर गौर किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत दुरुस्त समत में मुआशी इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान और आईएमएफ मुआशी इस्लाहात पर मुत्तफिक हैं। फंड पाकिस्तान की इमदाद के लिए तैयार है। पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत के दौरान कर्ज प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईएमएफ के ताउन की तारीफ की और कहा हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में वसीतर इश्तराक, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म से लेबनानी हम मनसब ने 1-on-1 मुलाकात की। इमरान खान ने साद हरीरी को नई हुकूमत की तश्कील पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक लेबनान बाहमी तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने लेबनानी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म यूएई पहुंचे तो दुबई एयरपोर्ट पर अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पहली बार कोई वज़ीर आज़म खुद चलकर आईएमएफ के पास गया।
हुकूमत नवाज शरीफ की बीमारी का फायदा उठाना चाहती है। गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि अगर शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाया गया तो हालात मजीद बिगड़ेंगे। निज़ाम को मुंजमद कर सकते हैं लेकिन हम कंटेनर पर नहीं चढ़ना चाहते। पहली दफा एक वज़ीर-ए-आज़म चल के IMF के पास जा रहा है, भीख मांगने जा रहा है। ये सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा, हालात मजीद बिगड़ेंगे, पार्लियामेंट के अदारे को नुकसान पहुंचेगा। और अगर मियाँ शहबाज शरीफ को हटाया गया या हुकूमत ने अपना रवैया दुरुस्त न किया गया तो हम बार बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के बाहर जो है एहतजाज नहीं करना चाहते, हमको कंटेनरों पर नहीं चढ़ना चाहते। इस किस्म का एटीट्यूड जो है वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म के जो साथी हैं उन्होंने अगर अपनाया तो हम भी इस सारे सिस्टम को बिल्कुल मुंजमद कर सकते हैं। रिलक्टेंस है सिर्फ इस बात की है कि फिर उसके साथ सिस्टम को और अदारों को नुकसान पहुँचेगा, जमहूरी अदारों को और आइनी अदारों को नुकसान पहुँचेगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि हुकूमत से कभी NRO नहीं मांगा, इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। जबकि मौला बख्श चांडियों का कहना है कि ऐसा बेबस वज़ीर आज़म कभी नहीं देखा। इमरान खान पार्लियामेंट को चलाने के बयान की वजाहत करें। वज़ीर आज़म इमरान खान के NRO से मुताल्लिक बयान की सियासत के ऐवानों में गूंज बरकरार। हुकूमत से कभी NRO नहीं मांगा, पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने बूरेवाला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन पर 26 मुकदमात नवाज दौर में बनाए गए। मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। मौला बख्श चांडियों ने पार्लियामेंट से मुतालिक बयान पर वज़ीर आज़म से वजाहत मांग ली। उनका कहना था कि लगता है वज़ीर आज़म मायूसी और बेबसी का शिकार है। पार्लियामेंट को चलाने की जितनी कोशिश करनी थी कर ली, क्या मतलब इस बयान का? अब पार्लियामेंट नहीं चलेगी, अब आप पार्लियामेंट को नहीं चलाना चाहते, अब क्या किया जाए? पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया जाए, आपको बादशाह डिक्लेयर कर दिया जाए, आपके चंद नाहल वज़रा को आपके नौरतन करार दिया जाए? ये मायूसी है, आपको अपने निज़ाम से मायूसी, आप अपने हुकूमत से मायूसी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि वज़ीर आज़म की बातें उनकी नाकामी का एतराफ़ है। और रूटों को मनाने का मिशन मुकम्मल हो रहा है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने एक बार फिर साथ मिलकर चलने का अहद कर लिया है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि PTI के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, उस्मान बुज़दार को हटाने की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। नईमुल हक ने शहबाज शरीफ के आइंदा से प्रोडक्शन ऑर्डर को ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। इसी पर देखिए लियाकत अंसारी की ये रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के बड़ों की बैठक, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर नईमुल हक की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, दोनों का मरकज और पंजाब में साथ चलने का तजदीदे अहद। नईमुल हक बोले, पंजाब में शराकत इक़्तिदार के मुआहदे पर अमल कर दिया, मरकज में भी जल्द ऐसा ही होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने सरदार उस्मान बुज़दार की भरपूर हमायत का ऐलान किया। अगर किसी ने साजिश की तो हमारी पार्टी बिल्कुल उसका साथ देगी, चाहे जो मर्जी हो, हम किसी का साथ नहीं देंगे और ना ही उसको नाकाम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नईमुल हक का कहना था कि मुखालफिन की साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे, नैब कवानीन में तरामीम के लिए तैयार हैं। नईमुल हक ने आइंदा से शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर का इजरा भी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। आइंदा प्रोडक्शन ऑर्डर जो शहबाज शरीफ साहब को अगर वापस लाना है तो हम चाहेंगे कि वो एक ज़ाब्ता अखलाक पर दस्तखत करें ताकि कौमी असम्बली की कार्रवाई चल सके। शहबाज शरीफ के खिलाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अदम एतमाद की तहरीक के सवाल पर बोले कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना था कि प्रोडक्शन ऑर्डर पर आकर किसी को गालियां नहीं दी जा सकती। जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने मुस्लिम नून से किसी किस्म के भी राब्तों की तरदीद की। दोनों इत्तेहादियों ने मरकज और पंजाब में जहाँ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया, वहीं पर अपोजिशन की सरगर्मियों का भी डट कर मुकाबला करने का फैसला किया है। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। और अभी आपको अहम खबर दें, एक साल में सरकारी इदारों के कर्जों में 302 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। सरकारी इदारों के कर्जे 1129 अरब रुपए हो गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक वाजिबात 1033 अरब से बढ़कर 1359 अरब तक जा पहुंचे हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे अलीम मलिक से। अलीम, आगाह कीजिएगा, ये हुकूमत तो कर्जों की मुखालिफ रही है।
جی موجودہ حکومت کی جانب سے پہلے تو یہی کہا جاتا تھا کہ قرضوں پر انحصار کم ہوگا اور اب خود انحصاری کریں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہے اور اب سرکاری اداروں کی جانب سے جو قرضے کی ایک تھا رجحان اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کی گئے ہیں اس کے مطابق ایک سال میں جو سرکاری اداروں کے قرضے ہیں ان میں 302 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں جو قرضے ہیں سرکاری اداروں کے وہ تقریباً 1129 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ انہی سرکاری اداروں کے جو واجبات ہیں وہ تقریباً 1034 ارب روپے کے بڑھ کر 1360 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ اس میں جو ادارے ہیں اس میں وابستہ گئے قرضے تقریباً ایک سال میں 50 ارب روپے تک بڑھے ہیں اور یہ قرضے اب 132 ارب تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ جو پی آئی اے کا قرضہ ہے وہ ایک سال میں 21 ارب روپے بڑھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ علی ملک اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ نیول چیف نے پاک بحریہ کی مشق 2019 میں شریک ممالک کے بحری جہازوں کا دورہ کیا، کمانڈنگ افسروں اور عملے سے ملاقاتیں کی۔ پاک بحریہ کی مشق 2019 کے تیسرے روز چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے برطانیہ، ترکی، چین اور آسٹریلیا کے بحری جہازوں کا دورہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف عمان، ملیشیا، اٹلی اور سری لنکا کے بحری جہازوں پر بھی کیے گئے۔ نیول چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ امیر البحر نے غیر ملکی جہازوں کے کمانڈنگ افسروں اور عملے سے ملاقاتیں کی، انہیں خصوصی بریفنگز بھی دی گئیں۔ ایڈمرل ظفر عباسی نے وہاں موجود غیر ملکی میڈیا کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ امیر البحر نے مشق میں شرکت اور باہمی تعاون کے فروغ پر تمام شریک ممالک کے نمائندوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں قاتل ڈور نے ایک اور زندگی چھین لی ہے۔ فیکٹری سے گھر واپس جانے والا نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ جی ہاں، لاہور، گجرانوالہ اور نارووال سمیت مختلف شہروں میں بھی دن بھر خونی کھیل جاری رہا۔ پنجاب حکومت کے دعووں کے باوجود خونی کھیل کو روکا نہ جا سکا۔ فیصل آباد میں قاتل ڈور نے ایک اور گھر اجاڑ دیا۔ نوجوان گلے پر ڈور پھرنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ کچھ روز قبل منائی گئی بسنت پر بھی 2 لوگ جان سے گئے، 20 زخمی ہوئے۔ لاہوریوں نے بھی چھٹی کے روز پتنگ بازی کی، پولیس حرکت میں آئی اور 174 کو حوالات پہنچا دیا۔ گجرانوالہ کے باسیوں نے بھی خونی کھیل کو نہ چھوڑا، پولیس سے بے خوف نوجوان پتنگ بازی کرتے رہے۔ قانون کے شکنجے سے بچنے کے لیے پتنگوں اور ڈور کی آن لائن فروخت بھی شروع کر دی گئی۔ نارووال میں بھی پابندی کے باوجود بسنت منائی گئی۔ آسمان پر رنگ برنگی پتنگوں کا راج رہا۔ دھاتی ڈور کا بھی بے دریغ استعمال دیکھنے میں آیا۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.